I welcome you all in our webinar, Roadmap for International Fully Funded Scholarships. हमारे मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आपकी ज़िंदगी का वसी तजर्बा और इल्म हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। हम आपकी मौजूदगी और रहनुमाई को एजाज़ समझते हैं। जी, थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, डीवीएम से लेकर एमबीए और फिर स्वीडन में एमएस और फिर चाइना में रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इसके बाद यूके से पीएचडी, 2004 से अब तक का ये सफर बहुत मुतासिरकुन है। इस कामयाब सफर के पीछे क्या राज है? Thank you very much, Dr. Saab. First of all, I want to thank you to make this forum available for many people who are doing their education in veterinary science and also in the other disciplines. And this is very much useful in the coming days also, because such forums are lacking nowadays and people are not so motivated to make this forum. So the congratulations to you, first of all, for the arrangement of this meeting and making this forum. So if you asked me how I did this journey, so then I started from 2001, and it is now 2026. It is 26-year long journey. So at that time, people think that if they are unsuccessful to get admission in the MBBS, and likewise happened with me, and then they selected straight away the DVM or the D Farm degree. And the situation is same nowadays. And I can assure you, because many of people have joined the DVM degree after their FSE, so they are lucky person that they have joined this noble profession. Because if you look internationally, there are a lot of opportunities linked with this particular, like DVM degree. After DVM degree, you can join as many fields as you can. If you look into your coursework, you are studying more than 70 courses. And in each course, there is a separate field for the specialization. So, so think about it. Like if you are doing like BSc in chemistry, you can go only in one direction, which is chemistry or somewhat linked disciplines. But if you are doing like DVM, there are more than 70 fields. You can specialize, you can work, you can. So there are a lot of applied fields after this degree. Like after DVM, I went to Sweden, where I joined molecular biology, which people think that it is not directly related with this degree. But the molecular biology, the microbiology, the genetics, you can name, and it is linked with the DVM. So if you see internationally, more than 70% of the research labs in different scientific fields are occupied with the DVM graduates. So in this way, I want to congratulate you. You are in a right field, and do not ever demotivate yourself that you are not in a good field, because many people think that if you are a DVM, the people will call you a dunga doctor, so which is a demotivating factor. So this is only one field. If you are joining after DVM the local field, like in the villages I worked there, then people are used to call the animals the dungar, and that the person who is treating them, so likewise they are calling them. But it is not a shameful thing. It is a well paid, even if you are working in the clinics. And if you are like ashamed for this word, then you can straight away go into the research and development. And in research and development, in all over the world, you can join any novel research laboratory. Like for example, I am working in the parasitology, and we are doing a lot of work in DNA sequencing, like linkage with the food security. So we have liaison with some European labs,
So there is a lot of things we can do, and this is only one field, that is parasitology. If you go into the microbiology, so there is a lot of things like One Health that is directly linked with this field. And if you think about, like, if you give a vision on the world, you can see that there are only main three things which we can see, that one is the environment, one is the humans, and one is the animals. And you are dealing with the animals. So 33% of the field, if we see in a greater perspective, you are dealing with. So 33% of the research and development will go to the animals, 33 with the animal, with the humans, and remaining with the environment. So if we link these three disciplines all together, we called it One Health. So this is the most dominant field nowadays where people are working, and vets are working a lot in this field, and they are earning lot of money. You cannot think about, like, if I talk about with, like, it is now 26 years from 2001 to 2026. So my class fellows are earning, you can say, from half a million to 4 millions per month. So this is a huge amount they are earning. So it depends on how you are utilizing your degree. If you are doing a DVM and straight away you are joining in the field, like, you are going into the industry or like into the academia, so there are two options after the DVM. So you need to think about where is your interest. If you think you are interested in the academia, then you need to complete your masters and your PhD. Then you will be a successful man. But if you think you are an industry man, or you are a good marketeer, you can communicate your products well to the customers, then straight away you can join the industry. And then you do not need to do masters and PhD. After DVM, just go into the field, join industry, join some company like feed company. There are multiple fields after, just after DVM you can join. I will elaborate one by one. Like, for example, if you are now, today you are graduated and you have degree in your hand, so now competition is high. When we did over DVM, the competition was low. If I give my example, when I completed in 2005, and after 2 months I got a government job. But nowadays, I will not never recommend anyone to join the government job, because it will demolish your all of your career, and you cannot earn lot of money if you are going into the government sector. So after DVM, straight away go into the field, go into the market, join some pharmaceutical company, or like feed company like chicks. There are a lot of marketing companies now, Vanda company, because ruminant feed is now emerging nowadays, and people are making a lot of money. Like, initially they are offering you like zero point 0.2 millions a month, or 1.15 million a month in Pakistan, if you are living in a Pakistan. So there are a lot of opportunities after DV, and never think you don't have anything to do. And the other thing, the man who cannot do anything, he can just start his own clinic, veterinary clinic, and he is then self employed, and he will be a entrepreneur by himself. And they are also making a lot of money. I know many people. If you have good stuff in your shop, then you can sell and make your own money. But today webinar is not for the local stuff, like if you are going in. But I want to elaborate you as a journal that you are in a right direction, and you are in a well settled field. So be motivated, be committed, and you will be in a good position after your undergrad. So in our universities, one thing that is lacking is career development department. So I haven't seen in any university that there is, if they have any career development.
department or like sections there, because they don't guide any student. When I come in UK, I have just seen that there is a well recognized career development, employment screening and employment seeking department here, and secondly well-being department. If any of the people of the student have any mental stress or like well-being issues, they are treated well here. But it is not like in Pakistan. Maybe it is middle and low and middle income country, but so that's why it is important to stay here. And we are doing this webinar, that it is my duty that if I have some experience of field, I have to communicate with the fresh graduates. So uh, career development is very important, and when you are in the final year, it is the most important thing. You should contact with your seniors, start making your networking in the final year, because in the final year you don't have so much to do. Only internship and 6 months, one semester. So start using that time period in making your networks, make communications with your seniors, start searching the job if you want to go into the field directly after undergrad degree, or if you are interested to go outside Pakistan, then in the final year your first goal should be to appear in the IELTS exam and start preparing your English language proficiency. And your goal is 6.5 band if you are coming, if you have aimed to come in the UK or in the Europe, then your aim should be 6.5 band in the IELTS. And if you have 6 band, then it is okay for Europe and also for China. But if you are seriously looking for UK, then you need 6.5 band. And if you are looking for Australia and New Zealand, then you should look for 7 band. 6.5 might be accepted in some universities, but 7 is the benchmark for Australia, especially in PhD. And if it is MS, then it is 6.5 bands are enough. So, so this is the overview of this meeting. So I will ask Ahmed directly if there are some specific questions from the audience. Then rather going to the motivational speaking, we will start answering your questions. So Ahmed, you if you can ask question if you have, or otherwise I can carry on. Thank you very much, Dr. Saab. Your story itself is a motivation for all of us. Thank you. We have learned a lot from you. We want to gain more from you. Before that, we will start the question answer sessions. We want to introduce the host of our webinar, the All Pakistan Veterinary Doctors Community. So that I want to invite Dr. Uzair from Sivas to introduce the hosting organization APVDC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much, Ahmed Raza Javed. Am I clearly audible, Ahmed? Ahmed, Yes, I am clearly audible. Okay. Yeah, we can listen you. We can hear you. Yeah. All Pakistan Veterinary Doctors Community APVDC ये एक प्रोफेशनल नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है जो वेटनरी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लर्निंग, नेटवर्किंग और करियर ग्रोथ के लिए एक साथ लाता है। इस साल यानी 2026 के अंदर हमने ये प्लान किया है कि हम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप वेबिनार्स, करियर गाइडेंस सेशंस, रिसर्च वर्कशॉप्स और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइज करके दें। अगर आप इस कम्युनिटी के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन द APVDC कैबिनेट बिकॉज वी आर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इफ वी आर टुगेदर।
Now, without taking any more time, let me share with you guys a full plan of today's event. सबसे पहले जो हमारे co-host हैं मिस्टर अहमद रजा जावेद फ्रॉम यूएएफ, ये सर के साथ रैपिड फायर क्वेश्चनिंग करेंगे. सबसे पहले रैपिड फायर क्वेश्चनिंग सेशन होगा. उसके बाद जो आपके थ्रू जो आपने गूगल फॉर्म हमने शेयर किया था, उसके थ्रू जो आपने क्वेश्चंस हमें भेजे, डॉक्टर साहब उनको एड्रेस करेंगे. और इन द लास्ट इफ टाइम अलाउज तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको अलाउ किया जाएगा कि वो चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस भेजें और डॉक्टर साहब उनको एड्रेस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द रैपिड फायर क्वेश्चन सेशन. मिस्टर अहमद रजा जावेद, ओवर टू यू. Thank you very much, Mr. Uzair. So let's start from some interesting questions. So डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप कोई ऐसी एक स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएं, कोई ऐसी स्कॉलरशिप बताएं जो कि डीवीएम के हर स्टूडेंट को उसमें अप्लाई करना चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर आप इसमें एक को नहीं हम फोकस करते, कंट्री वाइज में थोड़े से आपको जो मेन स्कॉलरशिप हैं वो बताता हूँ. So first of all, if you are interested in Europe, then Erasmus Mundus should be in your mind. If you are interested in Australia, then Australian government scholarship should be in your mind. If you are going to focus UK, then Commonwealth scholarship, top of the rank, then Chevening scholarship. But Chevening scholarship जो है उसके साथ आपको 2 years का experience required होता है. ये दो टॉप ऑफ द रैंक है. और अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो आपको जीआरई करना पड़ेगा, और वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी उनके स्कॉलरशिप वेरी करते हैं. जी शुक्रिया डॉक्टर साहब. मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमें सुन रहे हैं वो साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करते रहें ताकि इन फ्यूचर उनके लिए इजी हो, डाटा कंपाइल उनके पास मौजूद हो, तो ये बेहतर है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए. तो हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. डॉक्टर साहब, हमें कोई ऐसी स्किल के बारे में बताएं कि वो हर स्टूडेंट को बिल्डअप करनी चाहिए, उसको एक्वायर करना चाहिए, कोई एक स्किल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्किल है वो है नेटवर्किंग. ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्किंग ही वो स्किल है जिससे आपको सक्सेस मिलती है. इसीलिए मैंने इनिशियल अपने स्पीच में भी यही बात की थी कि आपने लास्ट जब आपका आखिरी ईयर स्टार्ट होता है तो आपका फोकस नेटवर्किंग पे जाना चाहिए. अगर डीवीएम की 5 साल की डिग्री है तो पहले 4 साल आपका स्टडी पे फोकस होगा, सीजीपी हाई करने पे फोकस होगा. 5th ईयर में जाके आपका नेटवर्किंग पे फोकस होगा और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने पे आपका फोकस होगा. तो ये वो स्किल है जो आपको कामयाब करेगी. और सेकेंडली आपने जो है वो कम्युनिकेशन अपनी जो है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर आपने फील्ड में जाके काम करना है आपको बात करनी है. जैसी भी बात कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरों को साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें. इसका जब हम डीवीएम में थे तो हमने एक ये तरीका निकाला था कि हम तैयारी इस तरह करते थे एग्ज़ाम्स की कि ग्रुप स्टडी करते थे. उसमें चैप्टर्स वाइज हम एक दूसरे के साथ बांटते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर एग्ज़ाम में 5 चैप्टर हैं तो हम 5 लड़के बैठते थे, पांचों एक एक चैप्टर पढ़ते थे. और फिर जब हम पढ़ लेते थे 1 घंटा देते थे सबको कि एक एक अपना पढ़ लें. फिर वो हर बंदा दूसरे को पढ़ाता था. उससे क्या होता था, हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती थी, हम अपनी स्किल सेट इम्प्रूव होता था दूसरे को बात समझाने का. तो यही बाद में काम आता है जब आप फील्ड में जाते हैं कि आप अपनी बात को कितना दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. ये टॉप ऑफ द 2 थिंग्स हैं जो आपको कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. जी अहमद. डॉक्टर साहब, ये नेटवर्किंग हमने अपने स्टूडेंट्स फेलोज के साथ तो हमने कर ली, लेकिन अगर हम नेटवर्किंग करना चाहें इंटरनेशनली ग्लोबली, हाँ, तो इसमें बेस्ट वे कौन सा हो सकता है? उसमें बेस्ट वे बहुत सारे हैं. ख़ास तौर पे समर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो उनको आप अब तो कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी हो गई है. आप गूगल पे सर्च करें समर स्कूल्स इन यूरोप, ऑनलाइन समर स्कूल्स इन यूरोप इन वेटनरी स्कूल्स. आप अगर वेटनरी के हैं, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के हैं तो आप समर स्कूल्स इन माइक्रोबायोलॉजी इन यूरोप एंड यूके. यहाँ पे ये एक कॉमन चीज़ है कि वो समर में क्या करते हैं, वो समर स्कूल्स करवाते हैं. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ
एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दूसरे में जाते हैं, ऑनलाइन भी लोग उसको अटेंड करते हैं और बहुत सारे फ्री भी होते हैं। और सेकेंडली आपको जो है वो इंटरनेशनल जो है बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके साथ अपने आप को अटैच करना है, वो आपका इंटरनेशनली लिंक बनना शुरू हो जाएगा। और स्टूडेंट के लिए बहुत सारी जो जैसे अमेरिकन एसोसिएशंस हैं फॉर माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पे है यूके में जो है वो ब्रिटिश सोसाइटीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, ब्रिटिश सोसाइटी फॉर पैरासाइटोलॉजी एंड लाइक वाइज सो ऑन. So they are continuously arranging sessions monthly and 6 monthly. You can attach with them, register with them, and then you will start building your international linkages. So in this way you can do this for free. जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आगे हमने स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करना है कि जी। किस तरह से हम स्कॉलरशिप्स के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और किस तरह उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई एक सिंगल वेबसाइट अवेलेबल नहीं है कि उसके थ्रू हमें आने वाली स्कॉलरशिप्स का पता चल सके? हाँ, one website that you should know is Find a PhD if you are looking for a PhD. And likewise, there are websites for Germans for MS search, and but the Find a PhD website is the top of ranked. So जितनी भी पूरे यूरोप में, यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी PhDs और मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स हैं वो इस वेबसाइट पे अनाउंस होते हैं और वो पूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ यूके की बात करें तो यूके के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो है जॉब, फाइंड अ जॉब इन यूके आपने लिखना है गूगल पे, तो वो आपको वेब पेज आ जाएगा टॉप पे। तो यहाँ पे यूके के अंदर सर्च के लिए वो चलती है। इसके अलावा जो है एक टेलीजॉब.com है, उसको आप ज्वाइन करें। फाइंड अ जॉब एक .com है, उसको ज्वाइन करें। ये वेबसाइट्स जो हैं ये कॉमनली यहाँ पे यूज़ होती हैं और ये बहुत यूज़फुल हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में, तो वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको वीक करती है? कोई एक ऐसी चीज़ आप बताएं कि वो हमारी एप्लीकेशन वीक होगी, अगर हम उसको ना करें तो हमारी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी एप्लीकेशन हमारी? ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इसमें सबसे जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं कॉपी पेस्ट करना, वो क्या करते हैं एक जेनेरिक ईमेल बनाते हैं प्रोफेसर के लिए उसको कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जो कि फुल फ्लैज, जैसे रिसमस मंडस मैंने कहा है, तो उसमें आपने रिसमस मंडस पे अप्लाई करना है। इसके अलावा प्रोफेसर्स के पास अपने स्कॉलरशिप होते हैं जिनको सर्च करने के लिए आपको ईमेल करनी पड़ती है। अपनी एक प्रॉपर सीवी बना के प्रोफेसर को ईमेल सेंड करते हैं कि मेरी ये सीवी है, मैंने ड्यूरिंग अपने अंडर ग्रेड ये काम किए हैं, ये अलाइड मैंने कोर्सेज़ किए हैं, ड्यूरिंग समर स्कूल्स में मैंने ये किया है। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, एक जेनेरिक ईमेल लिखते हैं, ऊपर से जस्ट डियर के बाद प्रोफेसर का नाम बदलते हैं और सेंड कर देते हैं। तो जेनेरिक ईमेल आपने कभी नहीं करनी। आपने 50 ईमेल्स की बजाय 1 या 2 ईमेल कर लें एक दिन में, लेकिन स्पेसिफिक ईमेल लिखें। जिस प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हैं उसके लास्ट 2 to 3 पेपर्स देखें कि उसने किस फील्ड में काम किया है, फिर अपने स्किल सेट को उसके साथ अटैच करके उसकी ईमेल फिर लिखें। एआई का दौर है, एआई से जनरेटेड जो ईमेल्स हैं वो 1 मिनट में पहचानी जाती हैं कि ये आपने लिखी है या एआई ने लिखी है। एआई से आप अपनी इंग्लिश ठीक करवा लें, लिखें खुद। जब आप लिख के एआई को देंगे वो उसको पॉलिश करेगी। अगर आप डायरेक्टली एआई को कहेंगे वो आपको ईमेल एक जेनेरिक लिख के देगी, वो रिजेक्ट ही होगी। उसमें 100 में से 99% चांसेस हैं कि वो रिजेक्शन की तरफ ही जाएगी। इसलिए कभी कॉपी पेस्टेड ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ना ईमेल, इस चीज़ को जेनेरिक नहीं करना। इस चीज़ को जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोफेसर को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके मुतल्लिक आपने उसको अपनी कैपेबिलिटी के साथ लिंक करके लिखना है। अब कैसे लिंक करेंगे? आप कहेंगे मैंने तो अंडर ग्रेड किया है, मैंने तो कोई रिसर्च ही नहीं की, ना मेरा कोई आर्टिकल है, तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ? तो उसका तरीका ये है
कि आप फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के स्कॉलरशिप के लिए या पीएचडी के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप उसके अपनी सीवी को अपडेट करेंगे। जो आपने माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं आपने अंडर ग्रेड में, वो कोर्सेज लिस्ट करेंगे। उसके अंदर जो आपने लैब्स पढ़ी हैं वो लैब्स वो आप लैब्स के अंदर जो जो आपने टेक्निकल स्किल्स ली हैं, फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरियल कल्चर किया है, आपने सेल कल्चर किया है, कुछ कोई भी आपने जो भी एलाइजा किया है, पीसीआर के कुछ टेस्ट खुद परफॉर्म नहीं किए, परफॉर्म होते देखे हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशंस लिख दें उसमें कि हमने डिमॉन्स्ट्रेशंस ली हुई हैं इस चीज़ की। तो इस तरह अपनी सीवी को चेंज करें। अगर अब आप नेक्स्ट ईमेल करना चाह रहे हैं कोई प्रोफेसर पैरासाइटोलॉजी का, तो आप पैरासाइटोलॉजी में जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं, जो आपने लैब्स अटेंड की हैं, उसमें जो आपने स्किल सेट लिया है, वो अपनी सीवी में अपडेट करें। वही अपनी ईमेल में भी है उसको रिफ्लेक्ट करें कि आप ये काम कर रहे हैं, मैंने ये मेरा बैकग्राउंड है, ये लिंक करता है, इसलिए मैं आपके पास अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने आपके लास्ट 3 पेपर्स पढ़े हैं, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। तो इस तरह करके लिंक करके आपने करना है। ये मिस्टेक नहीं करनी कि जेनेरिक ईमेल करनी है, ये वो दौर चला गया है, क्योंकि अब बहुत डेली के बेस पे नॉलेज फ्लो बहुत ज़्यादा है और वो स्क्रीन आउट हो जाएगा अगर आप जेनेरिक करेंगे तो। जी अहमद। डॉक्टर साहब, आप जो अभी करंट रिसर्च है उसके साथ डीपली एफिलिएटेड हैं, करंट रिसर्च के बारे में जानते हैं, तो हमें कोई इमर्जिंग वेटनरी फील्ड बताएं जो इन फ्यूचर हाई डिमांड रखती हो, जिसका फ्यूचर में ट्रेंड आना हो। ये जो वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड वन हेल्थ की फील्ड है, ये ऐसी फील्ड है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने पहले भी ये बात की है कि वन हेल्थ में 3 चीज़ें आती हैं, एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड एनिमल, और तीनों की इंटरलिंकिंग। यानी जो एनिमल की डिजीज़ जोनेटिक हैं वो वन हेल्थ में फॉल करेंगी, यानी कि जिसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों लिंक कर रहे हों। तो ये जो फील्ड है वन हेल्थ की, ये कभी ख़त्म ना होने वाली है, और ये उस वक्त ही ख़त्म होगी जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आप कर सकते हैं ज्वाइन, ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये चंद एक क्वेश्चंस थे जो हमने एंगेजमेंट को थोड़ा बढ़ाने के लिए किए थे। अब हम अपने वेबिनार का बाकायदा आगाज करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दूंगा उजैर साहब को कि वो अपने सेक्शन 1 जो कि अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी यानी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है क्या, यहाँ से अपने क्वेश्चंस का आगाज करें। जी उजैर साहब। जी थैंक यू वेरी मच अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस सेक्शन के अंदर डॉक्टर साहब जो सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट सवाल रहा, तो अवाम ये जानना चाह रही थी कि टू बिगिन could you explain what a fully funded scholarship really means? What expenses are typically covered and what should students not expect it to cover? अच्छा, इसमें ये जो आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है और सबकी ये डिमांड होगी। अच्छा, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है उसके वो इट मीन्स इट इज़ फुली फंडेड। इट मीन्स योर ट्यूशन फीस इज़ कवर्ड, you will be given a living expense per month. In UK they are giving you like around 1500 pounds if you are living away from London, and if you are living in the London then it is like 17 to 1800 pounds per month. So it's a lot of scholarship. So here expense is like 1000 pound, and then you have saving, and additionally your all fees covered. And in addition to this, some scholarships like Commonwealth and Chevening particularly, they are giving you a trip to visit your home in between, and also your travel cost is covered in some of the scholarships if you are talking about UK and Europe. But if you are talking about China, so things are a little different there. They are not supporting your travel. Likewise, in the UK and Europe, they are also giving you the air ticket. So all things are included. But in China, they are not giving you the travel grant, but they are covering your living expense and your fee particularly. So yeah. जी थैंक यू वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था
कि एक बंदे ने ये सवाल किया है कि डीवीएम ग्रेजुएट्स को ये क्यों कंसीडर करना चाहिए कि वो अब्रॉड जाके स्टडी करें, लाइक इसमें एडवांटेज क्या होता है? जिस तरह हम अक्सर सुनते हैं कि देते बाहर दी स्टैंप लगी है, देते अमेरिका दी स्टैंप लगी है, पंजाबी में अक्सर कहते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द एक्चुअली एडवांटेजेस कि इंटरनेशनल मास्टर्स या पीएचडी अगर हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तान के मुकाबले में, तो बाहर स्टडी करने में एडवांटेज क्या है? एक बात तो ये आपने खुद ही कह दिया कि ये हमारा मेंटली एक प्रॉब्लम है कि हमें चाहिए कि आपकी डिग्री वैसे अंडर ग्रेड की डिग्री तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान से ही करनी चाहिए, क्योंकि जितना थोरेटिकल नॉलेज है ना वो पाकिस्तान वाले जितना पढ़ाते हैं वो यहाँ पे उतना नहीं होता। प्रैक्टिकली ज़्यादा करवाते हैं लेकिन थोरेटिकल नॉलेज की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे इतना नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो अंडर ग्रेड की डिग्री तक तो पाकिस्तान में ठीक है। अब आगे जो मास्टर्स और पीएचडी है उसमें प्रॉपरली असल में आपको चाहिए होते हैं फंड्स रिसर्च करने के लिए। पाकिस्तान एक लो एंड मिडिल इनकम कंट्री है, इनके पास फंड्स नहीं होते रिसर्च करने के लिए, तो इसलिए इनकी जो मास्टर्स और पीएचडी है वो अंडररेटेड है, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान से एमएस और पीएचडी की है और आप कहें कि मैं बाहर से पोस्ट डॉक कर लूँ तो आपको पोस्ट डॉक ऑफ़र नहीं होगी 95% केसेस में। अगर आपकी पाकिस्तान से मास्टर्स और पीएचडी है और पार्शियल फंडेड है, यानी कि ऐसी भी फंडिंग होती है कि हाफ डिग्री आपने पाकिस्तान की है, बाकी हाफ आपने रिसर्च यहाँ यूके में या यूएसए में कर ली, दैट इज़ ओके, क्योंकि आपका हाफ ऑफ द डिग्री फिर यहाँ से हो जाती है, विच इज़ फाइन। क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, हम रिसर्च कर नहीं सकते वहाँ पे उस तरह की जो यहाँ पे होती है। और सेकेंडली जो यहाँ बाहर आके आप सीखते हैं वो आप अपनी कम्युनिकेशन को मच बेटर करते हैं, आपका विजन ब्रॉड हो जाता है। पाकिस्तान में हम फंसे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन बाहर आपको मल्टी कल्चरल एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ पे रह रही है और हम कहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि अगर आपने अंडर ग्रेड किसी भी जगह से किया है ना, डजेंट मैटर, अगर आपने झंग से किया है इट्स ओके, अगर आपने लाहौर कैंपस से किया है इट्स ओके, आपने एरिड एग्रीकल्चर से किया है इक्वली फाइन। वंस यू हैव डिग्री इन योर हैंड दैट आर ऑल इक्वल। द थिंग्स दैट इज मैटर इज योर मोटिवेशन। अगर आपकी मोटिवेशन है, आपकी कमिटमेंट है, तो आप लाजमी इसको अचीव कर लेंगे। अगर आपकी मोटिवेशन और कमिटमेंट नहीं है तो आप इसको अचीव नहीं कर सकते, कोई और आपके लिए अचीव नहीं करेगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, नेवर गिव मनी टू एनीवन फॉर योर स्कॉलरशिप, फॉर योर एडमिशन अब्रॉड, फॉर एनीथिंग। डू योरसेल्फ, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर कमिंग आउटसाइड पाकिस्तान। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो सख्त है, वर्किंग एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है। आपको जब तक आप खुद प्रिपेयर्ड नहीं होंगे उस लेवल पे, जब तक आप खुद अपनी एप्लीकेशंस जमा एजेंट्स के थ्रू कभी नहीं करवानी, वो आपसे पैसे लेंगे, आपका एडमिशन हो सकता है यूके में करवा दें। यूके में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, अगर आपने मास्टर्स करना है तो 15,000 पाउंड से लेके 30,000 40,000 पाउंड तक पर ईयर फीस है 1 साल की। अगर आपने पीएचडी यूके से करनी है आपको 1 लाख पाउंड चाहिए फ़ीस देने के लिए, और बाकी चीज़ें अलग हैं। इसलिए ऑलवेज़ लुक फॉर अ स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगा जब आप खुद चाहेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, कोई नहीं आपको रोक सकता। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं वो बंदा मेरे लिए कर दे, वो कर दे, वो नहीं होगा। लेकिन ये डिग्री ज़रूरी है बाहर की, अदरवाइज़ आपका ना तो एक्सपीरियंस होगा रिसर्च का, ना वो वैलिड होगी इंटरनेशनली। अगर आप पाकिस्तान में रह के सारी ज़िंदगी गुजारनी है और बाहर नहीं आना, देन इट इज़ ओके, फिर पाकिस्तान से आप करें और आपको लोकल पोजीशंस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंडर ग्रेड के बाद पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो जाए, आप किसी भी मुल्क में जाके ज्वाइन कर लें कोई भी जॉब, तो फिर आपको बाहर से ही पढ़ना पड़ेगा आफ्टर अंडर ग्रेड। अंडर ग्रेड तक पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, बल्कि बेहतर है कई जगहों पे, लेकिन उसके बाद आपको अगर हायर एजुकेशन वो आपको बाहर से ही करनी पड़ेगी। हमारे क्लास फेलोज़ ने एमएस किए थे, पाकिस्तान से किए पहले,
फिर बाहर आए, फिर दोबारा एमएस करने पड़े। वो 2 साल बस वो लिख लेते हैं अपनी सीवी में, लेकिन उनकी वर्थ इतनी ही है कि वो बस लिख लेते हैं। उनकी बेस पे उनको आगे पीएचडीज या जॉब्स नहीं मिली। अंडर ग्रेड रिकॉग्नाइज है पाकिस्तान की, वो आपको हर जगह पे पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है। एचईसी जब आपको स्टैंप कर देती है दैट इज़ ओके, लेकिन एमएस और पीएचडी अगर पाकिस्तान से की है, जॉब आपको पाकिस्तान में करनी है, दैट इज़ गुड एंड फाइन। अगर बाहर आके करनी है तो इट विल नॉट वर्क। जी सर। Thank you very much. So what I have gained, search your degree in Pakistan, next research abroad. Yes. Of Pakistan. For MS and PhD, I would highly recommend to go abroad. अदरवाइज आप फील्ड में जाएं, काम करें, डीवीएम करें, फील्ड में जाएं और पैसा बनाएं। अब और जब मैं इस चीज़ की आपको गारंटी करता हूं, आप किसी भी कंपनी में जाके ज्वाइन करेंगे, अगर आप डीवीएम के अंडर ग्रेड हैं, आपको मैक्सिमम 1 साल लगेगा मार्केट को समझने में। और बहुत सारे जो डीवीएम होते हैं वो 1 साल 2 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में काम नहीं करते, या तो वो कंपनी स्विच कर जाते हैं। अगर लोकल में पहले किसी लोकल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो स्विच करके मल्टीनेशनल में चले जाएंगे, यहाँ वो बहुत हाई सैलरी पे जाएंगे। अदरवाइज़ वो प्रेफर करते हैं कि अपना ही बिजनेस बना लो, क्योंकि वो मार्केट को अंडरस्टैंड कर जाते हैं बहुत जल्दी। उनका बैकग्राउंड होता है, उनका सारा स्किल सेट तो पहले ही है, सिर्फ एक एक्सपोजर चाहिए होता है। अगर आपने पाकिस्तान रहना है, नेवर डू एमएस एंड पीएचडी। पाकिस्तान में जस्ट डीवीएम करें, जॉब करें, पैसा बनाएं, या अपना क्लिनिक करें, पैसा बनाएं। अगर आपने एकेडेमिया ज्वाइन करना है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, फिर एमएस पीएचडी को करें और बाहर से करें, फिर आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे ओपन हो जाएंगे और फिर आप बहुत सारा पैसा बनाएंगे मुख्तलिफ मुल्कों में जाके, क्योंकि फिर उससे आपकी दुनिया ओपन होगी। अदरवाइज़ एमएस पीएचडी पाकिस्तान से करके पाकिस्तान में ही आप किसी यूनिवर्सिटी में जॉब लाजमी कर लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में मूवमेंट आपकी मुश्किल हो जाएगी। Okay, that was a very insightful information. Yes. Our next question is कि वो ऐसी कौन सी बड़ी गलत फहमियां हैं जो स्टूडेंट्स रखते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में? सबसे बड़ी गलत फहमी है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, कि हम नहीं कर सकते, हमारा तो होना ही नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि मेरा होना ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? इसलिए ये कभी नहीं सोचना। अगर आपकी सीजीपी इवन 3 से कम भी है ना तो डजेंट मैटर। अगर आपकी 2.8 तक भी सीजीपी है तो आप स्कॉलरशिप 100% गारंटी मुझसे लिखवा लें, आप ले लेंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है पूरी ईमानदारी से, तो आपको स्कॉलरशिप की दुनिया के किसी भी मुल्क में, ये नहीं कि चाइना में या किसी भी मुल्क में, आप ले लेंगे स्कॉलरशिप। ये मैटर ही नहीं करता, डिग्री मैटर करती है। डिग्री आपके हाथ में है, प्लस आपकी नेटवर्किंग आपने बनाई है, आपने अपने स्किल सेट इम्प्रूव किए हैं, आपने अपनी सीवी बिल्ड की है। इवन आपके पास कोई रिसर्च आर्टिकल है, डजेंट मैटर, आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें, राइटिंग की बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। पर्सनल स्टेटमेंट आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट लिखी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर आपका स्टेट ऑफ द आर्ट लिखा होना चाहिए, सीवी आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ लिंक्ड होनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें ओवरकम कर जाएंगी। अगर आपने कुछ समर स्कूल्स किए हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट कर लिया करें। जहाँ आपके पास टिकट के पैसे नहीं है, रजिस्ट्रेशन करें, फ्री होती है स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन पार्टिसिपेट करके अपनी सीवी में लिख दें कि मैंने ये इस मुल्क की जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, आपकी सीवी में आ जाएगी। वो आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, वो आपसे फीस नहीं लेंगे। तो इस तरह अपनी सीवी को बिल्ड करें, उसके अंदर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इस तरह की डालें जो फ्री हों। तो कोई है, ये सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी सीजीपी 3 से कम है और वो इस वक्त प्रोफेसर हैं यूएसए की यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए, सिर्फ इस वजह से कि मोटिवेशन हाई थी और उन्होंने होप नहीं छोड़ी, अप्लाई करते गए, रिजेक्शंस आती हैं, डजेंट मैटर, रिजेक्शन से डरना नहीं है और अप्लाई करते जाना है।
मैं अब मेरी पीएचडी अब कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट वीक मेरा वाइवा है, तो मुझे कितनी रिजेक्शंस अभी आई हैं पोस्ट डॉक्टरेट में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उनको वो स्किल सेट नहीं चाहिए होगा जो मुझ में है, मैं जहाँ पे मेरा क्लिक करेगा वो मुझे मिल जाएगी। इसी तरह पीएचडी के में ये जो मैं अभी यहाँ से की है यूके में, ये फुली फंडेड थी, तो मुझे तकरीबन 1 साल लग गया था ये वाली पीएचडी सर्च करने में। तो ये 1 साल का टाइम पीरियड अपने जहन में रखें। 1 साल तक अगर आप अपनी फुल मेहनत के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो ये आप 1 साल इसके लिए वक्फ करें, साथ जॉब भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के सर्च पे लगे रहें, साथ जॉब करें ताकि आपकी डेली अर्निंग होती रहे। शाम को 4-5 घंटे निकालें इस काम के लिए। जैसे ही आपका क्लिक हो तो आप आ जाएं बाहर, कोई मसला नहीं है। लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जो काम कोई भी दुनिया में शख्स कर सकता है ना, वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले हुआ है। जो मैं कर सकता हूँ वो ज़हर भी कर सकता है, वो सुहेल अहमद भी कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो पहले मैंने जो किया है, मैं भी तो इंसान हूँ। अगर मैंने किया तो वो आप भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा काम जो किसी ने नहीं किया वो करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन लोग हर साल हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान से स्टूडेंट बाहर जाते हैं। वो जाते हैं जो कमिटेड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं और जो लगे रहते हैं, वो फिर चले जाते हैं। 1 साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रगल कंटिन्यूअसली इसको करते रहना है। जी यूज़र ओके, सो ये एक वाकई एक मोटिवेशनल आंसर था मेरे जैसे लोगों के लिए भी। और अभी तक ये हमारे पहले सेक्शन के सारे सवालात कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने डॉक्टर साहब के से ये सीखा कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मींस फुली फंडेड। कभी कभार आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी उनमें कवर हो जाते हैं। और सेकेंडली हमने ये इनसे डॉक्टर साहब से सीखा कि डीवीएम और बीएस फ्रॉम पाकिस्तान एंड रिसर्च आउट ऑफ पाकिस्तान। यस। और थर्डली ये सीखा कि never ever underestimate yourself and build up your skills. Yes. So that was from the first section in which we learned what the opportunity actually is. So moving towards the next section, जिसमें हम डॉक्टर साहब से ये लर्न करेंगे कि बेस्ट कंट्रीज और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं आउट ऑफ पाकिस्तान। तो इस हवाले इस सेक्शन में मेरा सबसे पहला सवाल जो आवाम के जरिए गूगल फॉर्म्स के जरिए हम तक पहुंचा, उसमें ये था कि वो कौन से ममालिक ऐसे हैं जो डीवीएम के ग्रेजुएट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। ये मैं इस सवाल का जवाब ना लाजमी पहले ही देना चाहता था। ये बहुत अहम सवाल है। मैं अगर प्रोफेसर हूँ ना, और मैं फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, मैंने अपनी ही एग्जांपल दी है, और मुझे मास्टर्स और पीएचडी के लिए कोई स्टूडेंट चाहिए, मेरे पास 10 एप्लीकेशन अगर आएंगी ना, और उसमें एक वेट की हो और 9 कोई और डिसिप्लिन्स की हो, तो मैं वेट को हायर करूँगा। ये वर्थ है आपकी डिग्री की, कि वेट की डिग्री जो है वो ऐसी वर्सटाइल डिग्री है जो आपको 100 टाइम ऊपर ले जाती है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर लैब्स में आप खुद भी जाके देखें ना, आपको आधे तो वेट मिलते हैं। मुख्तलिफ बायोलॉजी की फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वेट्स को हर जगह पे प्रेफरेंस मिलती है। नंबर 1 तो ये हो गया कि डिग्री आपकी टॉप ऑफ द रैंक है, वो बाकियों को जो है ना वो साइड पे कर देगी। क्योंकि एमबीबीएस इससे ऊपर डिग्री है, वो करते नहीं है रिसर्च, वो जाते हैं सीधे क्लिनिक्स में, और उनके बहुत सारे काम हैं उनके पास करें, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं और वो उधर ही जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इक्का दुक्का शायद आए रिसर्च में, अदरवाइज जो है वो इवन ह्यूमन की कैंसर रिसर्च जो है, ह्यूमन वायरोलॉजी की जितनी रिसर्च है, वो सारी वेट्स कर रहे हैं। कोई ऐसी रिसर्च की फील्ड नहीं है जहाँ पे वेटनेरियन नहीं है। अब आपका क्वेश्चन था कि वो कौन से कंट्री हैं, कहाँ से हमें करनी चाहिए। तो आपको जो इजी टारगेटेड कंट्री है वो सबसे पहले आता है चाइना, क्योंकि उधर से जो मास्टर्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी अंडर ग्रेड बैठे हुए हैं, तो मास्टर्स के बाद आपको आइडियली अगर यूके के लॉज को देखें तो आप आफ्टर अंडर ग्रेड डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं, अगर आपके मार्क्स 70% अबव हैं। तो अगर 60% अबव हैं तो फिर वो प्रेफरेबली होता है कि आप पहले एमएस कर लें।
अच्छा, लेकिन MS के लिए सिर्फ अगर UK की बात करें तो 2 ही तरह के स्कॉलरशिप मेनली अवेलेबल हैं। एक रिस्मस मंडस है, सॉरी एक शीवनिंग है और एक कॉमनवेल्थ है। रिस्मस मंडस जो है वो EU के लिए है, यूरोप के लिए है। और अदरवाइज आपको फ़ी पे करनी पड़ती है यूरोप में भी और UK में भी मास्टर्स करने के लिए। और लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि यहाँ से मास्टर्स जो है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाता है और वो आप जल्दी से एलिजिबल हो जाते हैं अपनी नेक्स्ट डिग्री के लिए, PhD के लिए। और PhD जो है वो फुली फंडेड होती है यूरोप में भी, USA में भी और UK में भी। उस यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है PhD में कि आप अपनी फ़ी दे के PhD कोई भी नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ पे अगर UK में से आपने PhD करनी है तो 1 लाख पाउंड तो उसकी ट्यूशन फीस है सिर्फ, तो वो कौन देगा? वो 4 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी। इसलिए यहाँ पे जो PhD के जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं वो सारे फुली फंडेड ही आते हैं, लेकिन उन्होंने मास्टर्स जो है वो अपने पैसों से की होती है। UK में मास्टर्स महंगी है, यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यूरोप से मास्टर्स करेंगे तो वो 5-6 हज़ार यूरो में आपका 1 साल की मास्टर्स हो जाती है और साथ आपको 20 आवर्स का वर्क परमिट भी होता है कि आप काम भी कर सकते हैं। तो फिर होता क्या है, यहाँ पे भी 20 घंटे आप काम कर सकते हैं, UK में भी अगर स्कॉलरशिप है फिर भी, अगर स्कॉलरशिप नहीं है फिर भी 20 घंटे आपको वर्क अलाउ होता है, क्योंकि यहाँ पे ये रिवाज है कि स्टूडेंट अपना काम करके अपने डेली एक्सपेंस पूरे करते हैं, अपने वालदैन से पैसे नहीं लेते और ना ही यहाँ वालदैन पैसे देते हैं। ये रिवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि बच्चों को पालने वाला। यहाँ पे मैट्रिक के बाद आम तौर पे बच्चे जो हैं वो अपने होटल में या कहीं भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ से पैसे अपने बनाते हैं और लिविंग एक्सपेंस अपना पूरा करते हैं। तो तो MS का ये सिनेरियो है UK में और यूरोप में। लेकिन चाइना में सिनेरियो डिफरेंट है। वहाँ पे आपको फ्री मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है 3000 RMB, या यूनिवर्सिटी की अगर अपनी स्कॉलरशिप है तो वो 1000 RMB मिलती है, या अगर CSE की है तो वो ज़्यादा है, वो 3000 है। लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि वो 3 साल की है, 3 इयर्स की मास्टर्स होती है वहाँ पे, लेकिन वो रिगरस ट्रेनिंग आपकी करवाते हैं। तो अगर फिर आपका फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है तो स्ट्रेट वे चाइना में फोकस करें, वहाँ से जाएं, MS करें और फिर PhD के लिए, या फिर आपको पता काफ़ी कुछ चल जाएगा चाइना जाके, फिर UK भी आ सकते हैं आप। उनकी मास्टर्स जो है वो वैलिड है पूरी दुनिया में, उनको ये बड़ी जल्दी पिक करते हैं। यूरोप भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, USA भी जा सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट मास्टर्स करनी है तो चाइना जाएंगे। PhD के लिए मैं प्रेफर करता हूँ UK और यूरोप को। USA थोड़ा टफ है, उसके लिए GRE भी चाहिए और उनका स्कॉलरशिप भी ज़्यादा होता है। USA ज़्यादा पे करता है, यूरोप भी ज़्यादा पे करता है एज़ कम्पेयर टू UK। लेकिन मास्टर्स आपको चाइना से करना पड़ेगा क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट है, अगर आप फाइनेंशियली तौर पे साउंड नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को थोड़ा 5 से 7 हज़ार यूरो मैनेज कर सकते हैं तो फिर जाएं यूरोप, लेकिन किसी को ना दें पैसे, खुद करें अपना सारा प्रोसेस। आप जिसने DVM कर लिया वो सारा कुछ ही कर सकता है, मैं ये कहता होता हूँ। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वो एक एप्लीकेशन फिल करनी है, वो खुद करें, खुद अपने स्कॉलरशिप करें, किसी एजेंट को कभी पैसे ना दें, ना किसी और को दें। अपनी राइटिंग के लिए खुद करें, क्योंकि आप खुद किया होगा ना तो फिर आप यहाँ पे आके भी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन खुद नहीं लिखी होगी ना, प्रोफेसर आपसे डिमांड करेगा कि ये आपने क्लेम किया था अब करें, तो फिर आपसे होगा नहीं। इसलिए खुद करेंगे तो आप लर्न करेंगे, चीज़ों को सर्च करेंगे, गूगलिंग करेंगे। गूगल पे बहुत है, यूट्यूब पे बड़ी पड़ी है, यूट्यूब मुख्तलिफ टेक्निक सीखें, वहाँ से थोरेटिकल सीख लें, जो वो प्रोफेसर कर रहा है वो लिखेंगे यूट्यूब पे टिक आ जाती हैं, तो उसको CV में ऐड कर लें कि मैंने ये सीखी है, मुझे पता है इस टेक्निक का। क्योंकि वो आपका इंटरव्यू भी कर लेते हैं, तो इंटरव्यू में अगर आपने यूट्यूब से उसकी टेक्निक्स की कम से कम वीडियो ही देखी होगी तो आप बता तो सकेंगे ना, तो आप बताएंगे तो दैट इज़ फाइन, बाकी आप यहाँ पे आके कर लेंगे। तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास पैसे कम हैं या नहीं है तो सीधा चाइना जाएं, वहाँ से डिग्री करें मास्टर्स की, फिर यहाँ पे फुली फंडेड लें। अगर 5-7 हज़ार यूरो है तो फिर अपना टाइम बचा लें, क्योंकि यहाँ से 1 साल में आपकी डिग्री हो जाती है, फिर UK या यूरोप आएँ।
Thank you very much. So from this point, masters from China Yes. and If you don't have any finances. yes, if you don't have any finances, so PhD or masters from UK. Yes. And यूरोप से आपको मास्टर यूके की निस्बत सस्ता पड़ेगा. यूरोप बहुत सस्ता है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसी देने लगा हूँ कि हम अभी तो आपके टाइम में अब CGP आपको चाहिए 2.5 डिग्री करने के लिए, ऐसा ही है ना? 2.5 चाहिए. जब हमने DVM किया था 2001 और 5 वाला बैच, हमारी रिक्वायरमेंट होती थी DVM की डिग्री मिलने में 2.2 CGP. 2.2 पे डिग्री मिल जाती थी. अगर 2.2 से कम होती थी तो फिर डिग्री अवार्ड नहीं होती थी. तो अब 2.5 है. अब मैं आपको ये एग्जांपल देना, हमारा एक क्लास फेलो उसकी 2.2 पे डिग्री हुई, पूरी एग्जैक्ट 2.2 डिग्री उसको मिल गई. उसका हमने एडमिशन करवाया स्पेन में, 5,000 यूरो फीस थी. यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसने मास्टर्स फिर यहाँ से किया आके कि 2.2 पे भी मिल जाता है एडमिशन. ये डिग्री ऐसी है DVM की, यानी इससे कम तो हो ही नहीं ना सकती. इससे कम तो डिग्री अवार्ड नहीं होती. आपके केस में 2.5. तो अगर आप मूव करना चाहते हैं, ये ऐसी वर्सटाइल डिग्री है DVM की कि आपकी लोएस्ट CGP पे भी आपको एडमिशन मिल जाना है. इसलिए मैं कहता हूँ कभी अपने आपकी डिग्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करना. ये टॉप क्लास डिग्री है पूरी दुनिया में. यहाँ पे तो शॉर्टेज है वेट्स की वैसे ही. यूके में ना, हम नेक्स्ट मीटिंग में रख लेंगे कि यूके में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वेट्स के लिए. आज तो हम स्कॉलरशिप का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डिग्री की अफादियत यहाँ पे मैंने क्या देखी है. Yes, sure.